आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। बॉर्डर बना दो। बात करते मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर अमित ठाकुर जी को कि वो आए और दो शब्द कहे। तालियां। पूरी स्पीच लेना। ઇનામભાઈ ની સાથે જ્યારે યાસીનભાઈ અને નસીમભાઈ મને મળ્યા, એમણે મને વાત કરી કે એક મહિલા સેલ્ફ ડિફેન્સ ને લઈને એક કાર્યક્રમમાં કરવા જઈ રહ્યા છે અને બધી જ મહિલાઓ જે આ મારા મત વિસ્તારમાં પણ બધા આખો વિસ્તાર આવતો હોવાના કારણે બધી બહેનો જે આ પ્રકારના કાર્યક્રમમાં આવે, સી ટીમ પણ હાજર રહેવાની છે। જે ગુજરાત સરકારની એક પહેલ છે અને સી ટીમે એવા કહેવાય કે દાખલાઓને સોલ્વ કર્યા કે જેના કારણે રાજ્યની મહિલાઓ એ પોતાની જાતને સુરક્ષિત મહેસૂસ કરે છે। ક્રાઇમ અગેન્સ્ટ વુમન એ કોઈ પણ સમાજ હોય એ બહુ કોમન વાત છે। ડોમેસ્ટિક વાયોલન્સ એ ક્યારે બી કોઈની સાથે થઈ શકે છે। સેલ્ફ ડિફેન્સ નો મતલબ એ નથી કે આપણે કોઈને સીધા સામે મારવા માંગવાનું છે, પરંતુ જે સેલ્ફ ડિફેન્સ ની ટ્રેનિંગ પોતે લે છે એ કમસે કમ એટલો આત્મવિશ્વાસ થઈ જ જાય છે કે કોઈ પણ પ્રકારે કોઈ અત્યાચાર હશે તો અત્યાચાર સહન કરવા માટે હું નથી એમ। ઘણી વખત તો આંખની અંદર જે તાકાત હોય ને એ આંખની અંદરની તાકાત જ 90% ક્રાઇમ રોકી નાખે। બરાબર ને? કોઈ આમ કરીને આમ થઈ જાય તો ક્રાઇમ વધારે થવાનો છે। પણ હું આ વાતને એવી રીતે લઉં છું કે બહેનોનો આત્મવિશ્વાસ વધારવાનો આ કાર્યક્રમ છે। એટલે હું એમને બંને બહેનોને એના માટે અભિનંદન આપું છું કે એમણે આ પ્રકારની એક જાગૃતિ એ લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। જ્યારે એક માતા, એક બહેન એ પોતે જ્યારે કોન્ફિડન્ટ થશે તો કોન્ફિડન્સનો ફાયદો એના પરિવારના વિકાસ માટે, એમના સંતાનોના એજ્યુકેશન માટે અને એક પરિવારને બાંધી રાખવા માટે બહુ જ મોટો ઉપયોગ થવાનો છે। એટલે કોન્ફિડન્ટ મહિલા એ સમાજનું હંમેશા ઘરેણું છે। હું બધી બહેનોને અભિનંદન આપું છું
કે સામાન્ય રીતે મુસ્લિમ સમાજ એ એક રૂઢિની અંદર બંધાયેલો સમાજ છે અને રૂઢિની અંદર બંધાયેલા સમાજમાંથી જો યાસ્મીન અને નસીમબેન એ આટલી બધી બહેનોને અહીંયા ઓડિટોરિયમમાં લાવવામાં સફળ થઈ છે તો તમારે સમાજમાં જાગૃતિ બતાવી રહી છે અને તમે બધા જાગૃત થઈ રહ્યા છો એ આનાથી મોટું કશું હોઈ શકે નહીં. નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ મુસ્લિમ મહિલાના અધિકારો કે આર્થિક અધિકારો આ બધા ઉપર કોઈ પણ પ્રકારના જે રીતે આરોપોના પર લગાવવા હોય લગાડે પણ બહુ જ પવિત્ર મનથી જે લેજિટિમેટ અધિકાર છે એના માટે જે કાયદામાં બદલ કરવાના હોય એ કોઈ પણ પ્રકારના મનની અંદર દુર્ભાવ રાખ્યા વગર જે કઈ રાજકીય આરોપ થવો છે થશે પણ નરેન્દ્રભાઈનો જે વિચાર છે એ મહિલાઓને એના જે કઈ અધિકાર છે આની સંદર્ભે બહુ જ સારી રીતે કાનૂની સપોર્ટ મળે એ દિશામાં એમણે ઘણું બધું કામ કર્યું. આપણે બધા 140 કરોડ ભારતીય એ હંમેશા નરેન્દ્રભાઈ શું બોલતા હોય કે 140 કરોડ ભારતીય તો 140 કરોડ ભારતીયનું ઉત્થાન એ વિકસિત ભારતનો પાયો છે. બરાબર નહીં? એટલે આપ સૌ આત્મવિશ્વાસી બનો, શિક્ષણનું મહત્વ સમજો કારણ કે શિક્ષણ એ એવો પાયો છે કે ગમે તે પરિવારને ઉભો કરવાની તાકાત ધરાવે છે. આપણે બધા જેટલા આત્મવિશ્વાસી બનીશું આપણા સંતાનોને એટલું સારું શિક્ષણનું મહત્વ સમજાવી અને આગળ વધારી શકીશું. તો જ્યારે પણ મેં હંમેશા ભાઈઓને બધાને કીધું છે કે સમાજમાં જે કઈ આવા કામ હોય, શિક્ષણના હોય, આરોગ્યના હોય, સરકારી યોજનાઓને લગતા હોય, ક્યારે પણ તમે મને યાદ કરજો. અવશ્ય તમારા સમર્થનને હંમેશ માટે ઉભો છું. બસ આપ સૌ આ જ પ્રકારે સારા સારા જે કાર્યક્રમો છે જેનાથી એક કુલ મળીને એક પોઝિટિવ વાતાવરણ થાય, ભારત દેશ મજબૂત થાય એના માટે આપ જે કંઈ કરી રહ્યા છો એના માટે હું મારી શુભકામના આપું છું. અને આવા સારા કાર્યક્રમોથી ઘણી બધી આત્મવિશ્વાસી બહેનો એ તમને આગળના દિવસોમાં એવી રીતે ઉપલબ્ધ થશે કે જે બીજાના જીવનમાં પ્રકાશ ફેલાવશે. કારણ કે જ્યાં મહિલા પહોંચી શકે છે ત્યાં પુરુષ પહોંચી શકતા નથી. તમારો સીધો સંબંધ રસોડા સુધી હોય, बराबर कि नहीं? रसोई के अंदर आप सब पहुंच सकते हो और रसोई में जाके आप अच्छी से अच्छी बात आराम से कर सकते हो. तो बस आगे जाके बच्चों के अच्छे विकास के लिए मैं आप सबके आत्मविश्वास को बहुत अभिनंदन करता हूँ. आप अच्छा काम कर रही है, इतना मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूँ. थैंक यू. गुजरात हज कमेटी का हमारे अफजल खान भाई, इस बिल्डिंग के मालिक वरक वाला सेठ, जो चांदी पे वरक लगाने का काम है, चांदी पे वरक लगाने का काम है वरक वाला बिल्डिंग. हमारी यास्मीन आपा, हमारे नसीम आपा, हमारे साथ यहाँ हमारी एक आपा और यहाँ तशरीफ लाए, और जो मास्टर आर्ट सिखाने वाले हमारे जो भाई आए हैं, तो जो बच्चियों को एक आत्म संरक्षण और उनकी तालीम से हमें कैसे कामयाब होना है. अगर हमारी कोई बच्चियों को अगर कोई पकड़ता है या कोई उसको गलत नजर से देखता है या उसकी गलत सोच हो, तो हमें उस सोच को कैसे डिफेंड करना, उसके लिए हमारे नौजवान भाई वेजरपुर और विशाला के आजू बाजू की जो पुलिस स्टेशन से कुछ मेरी बहनें आई हुई है जो इसी वक्त पे काफी काम कर रही है, जो गुजरात गवर्नमेंट की पुलिस डिवीजन से है, जो हमारे यहाँ के डीसीपी जॉन वर्मा साहब ने भेजा हुआ है, तो वो भी तशरीफ लाए हुए हैं. मेरे काफी दोस्त, मेरी अम्मा है, मेरी छोटी बहनें, यहाँ सब तशरीफ लाए. मैं आज आप लोग को एक बात बोलने वाला कि हमारे युवा प्रोग है, इस तरीके की मुहिम करने वाले, इस तरीके की सोच रखने वाले
और इस तरीके का प्रोग्राम करने की जो सोच है वो यास्मीन आपा की, तो उसको पहले सभी लोग एक अच्छी तरीके से तालियां बजा के और उसका स्वागत करा जाए कि इस तरीके का प्रोग्राम और पूरा होल वर्चर ये कामयाबी की निशानी है और ये एक अच्छी तरीके से इस कौम को संभालने की बात है। जब इस कौम को अगर कोई संभालने के लिए आया है, आप रहती तो गांधीनगर है, जब इस कौम को जोधपुर की कौम को और एक मुस्लिम कौम को अगर कोई संभालने आया है वो बहुत बड़ी बात है। इस तरीके की सोच और भी किसी में आनी चाहिए ना, लेकिन हमारे जोधपुर में तो लोगों को घूमना फिरना खाना पीना ईद करना राशिद करना और तासीम करना और घूमना, इसके अलावा अपने को दूसरा कुछ समझ पड़ता नहीं है। लेकिन एक ये सोच, ये प्रोग्राम के पीछे इन्होंने पिछले 15 दिन से मेहनत करके गांधीनगर अहमदाबाद अप डाउन करके और ये एक अच्छा सा प्रोग्राम आयोजन किया और इस प्रोग्राम के लिए मैं यास्मीन आपा को शुक्रगुजार हूं और उनको सलाम पेश करता हूं। आज हमारी कौम के अंदर और इस बच्चों के अंदर एजुकेशन की काफी तकलीफें हैं। हमारा मौलवी हबीब साहब 12वीं क्लास इंग्लिश मीडियम तक उनकी काफी चल रही है स्कूलें। हमारे अफजल भाई का भी एजुकेशन के अंदर काफी काम चल रहा है। अब दुनिया उसके ऊपर है। अगर जो भी बच्ची आईपीएस आईएएस आईआरएस की लड़ाई में है और उसको कोई भी तरीके की अगर तकलीफ है, कोई भी तरीके की परेशानी है, अगर उसके एजुकेशन के अंदर परेशानी है तो जर्मन डीएमएक्स इलामा भाई उसकी एजुकेशन का खर्च उठाने के लिए 365 डे तैयार है। आप यास्मीन आपा की तरफ से हमारी कौम की कोई भी बच्ची हो, अगर वो आईपीएस आईआरएस की पढ़ाई करने का सोचती हो और उसको अच्छा माहौल चाहिए तो रहने के लिए बहुत बेहतर जगह है हमारे दोनों हजरतों के पास। और उसके पीछे की खर्च की अगर कोई भी कमी आएगी उसके लिए जर्मन डीएमएक्स इलामा भाई हमेशा रेडी है। और इस युवापुरा के अंदर किसी भी काम के लिए पूरे अहमदाबाद शहर के अंदर 2002 से लेके और आज तक कहीं पे कैसी भी परेशानी आई है तो मेरा और मौलाना का चेहरा खड़ा हुआ मिला है और इंशाअल्लाह मिलेगा भी। और आप लोगों की दुआओं से कोविड में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है। ईसा फाउंडेशन, आप सभी लोगों को पता होगा ईसा फाउंडेशन के काम के बारे में और उसकी कामयाबी के बारे में। आज 1000 समूह लगन और बाकी के काम है वो अल्लाह आप लोगों की दुआओं से ये सब काम करवाता है। हमारी सिर्फ सोच है और दुआ आप लोगों की है जिसको अल्लाह कामयाब देता है। इसी बात से मैं मेरी बात को पूरी करूंगा। आगे फिर मार्शल आर्ट का काम होना है और अब हमारा मौलाना साहब कुछ दो बातें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बुजुर्गों और प्यारी माँ बहनें, इस वक्त आज इस प्रोग्राम में हम और आप शरीक हुए हैं। ये बहुत ही मुबारक प्रोग्राम है और इस तरीके से अभी अमित भाई ने आकर के एक खुशी का ऐलान किया, यही सबसे बड़ा और अहम काम है। इस जोहापुरा के अंदर मैं अभी डेमोस्ट्रेटिव स्कूल के अंदर अगर आना होता है, अगर सरसपुर से निकलता हूँ तो 1 घंटा लगता है वहाँ दिल्लीवाला मस्जिद तक पहुँचने में। अगर ये ब्रिज बनता है तो किस तरीके से इन्होंने कोशिश की और वादा किया है, तो अल्लाह की दात से उम्मीद है कि हमारे बहुत से मसाइल और यहाँ के लोगों की बहुत सी तकलीफें हल हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मैं अमित भाई के इस जुमले पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यास्मीन आपा और दूसरी जो बहनों ने ये प्रोग्राम रखा, इनको हमारे इनामुल भाई इराकी, इनको मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अच्छा कदम उठाया इन्होंने, इस इलाके के लोगों के लिए फिक्रें की है
और खास करके यहाँ की माँ बहनों की जो फिक्रे की है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि इस्लाम जो है अपने जान अपने माल की हिफाजत के लिए, अपने जिस्म की हिफाजत के लिए इस्लाम उसकी इजाजत देता है। अगर कोई बंदा हमारे ऊपर जुल्म करता है और अगर हम उसके उस जुल्म के हाथ को मरोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, तो इस्लाम उस तोड़ने वाले को गाजी कहता है। और सामने वाला अगर हमें शहीद कर देता है, मार देता है, तो इस्लाम मरने वाले को शहीद के लफ्ज से याद करता है। मकसद कहने का ये है कि अपनी हिफाजत, अपने जान माल की हिफाजत करना इस्लाम ने खुद हमारे ऊपर फर्ज किया है। और उस मौके पर अगर हम हार जाएं या अपने आप को कमजोर समझें, तो ये इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान माल की हिफाजत की शरीयत के अंदर, हदीस के अंदर बहुत सी फजीलतें बयान की है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जान माल की, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत खुद करें और जिस तरीके से हमें मयस्सर और मौका मिले इस तरीके से करें। मैं आज के इस प्रोग्राम के हजरात से खिला इनको बात पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।